Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes. This one is your lecture number 62 turn, and from this lecture, I'm going to continue chapter number 22, that is financial statement with adjustment. See, some adjustment entries are there. Till 12 entries I have explained in my last lecture. This one is your 13th entry. 13th is abnormal loss. What is abnormal loss, Besa? Sometimes losses occurs due to some abnormal circumstances such as loss by fire, loss by flood, loss by earthquake, loss by such losses are called abnormal losses. It may be divided into two categories. Number one, loss of goods. Following entry will be passed in if the goods are destroyed: loss by accident account debit to purchase account, to input CGST account, to input SGST account, or to input IGST account. और फिर इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट. ठीक है. कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू एंट्रीज मेंशन अबव विल बी दैट ऑन वन हैंड द लॉस ऑफ गुड्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज इट रिड्यूसेस द गुड्स परचेज फ्रॉम रीसेल. On the other hand, it will be shown on debit side of P&L account since it is a loss to the business. ठीक है. On one hand अब इसको किस में से माइनस कर देंगे? परचेज में से माइनस कर देंगे और इसको फिर हम जो है P&L अकाउंट में शो कर देंगे क्योंकि ये बिजनेस का लॉस है. Then in case the goods are insured, an insurance company admit the claim, the account of insurance claim or insurance company will be debit from the amount of claim admitted in place of profit and loss account. अगर गुड्स इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया क्लेम को, तो क्लेम के लिए आपका अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो हमारा उसका इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट आ जाएगा टू इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट. सी बेटा, insurance claim or insurance company account debit to loss by accident account. Treatment in final account, the amount will be deducted from purchase on debit side of trading account. Unclaimed amount will be shown on debit side of P&L account and claim income will be shown on asset side of the balance sheet. जो claim income हमें मिली है वो हमारी asset है, हम asset side of balance sheet show कर देंगे और जितना remaining portion रह गया है it will be shown on the P&L account. और पूरी की पूरी loss का amount जो है minus हो जाएगा from trade purchase in trading account. Number 14 is goods distributed as free sample. Sometimes the goods which the business deal in are distributed as free sample for the purpose of advertising these goods. तो इसकी एंट्री हो जाती है. कभी कभी हम गुड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ फ्री सैम्पल फॉर एडवर्टीजमेंट. तो एंट्री इज एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट और टू इनपुट IGST अकाउंट. इसका ट्रीटमेंट है इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट and will be shown on debit side of P&L account because it is an expense of business. इसको हम डिडक्ट कर देते हैं परचेज में से फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा, और उसके बाद उसको हम शो कर देते हैं डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट इज ड्रॉइंग ऑफ गुड्स. इफ द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस हैज टेकन सम गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस. अगर कोई भी प्रोप्राइटर कैश की जगह गुड्स को लेता है बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज़ तो इट इज़ कॉल्ड ड्राइंग ऑफ गुड्स. ये ड्राइंग ऑफ गुड्स इसकी जो जर्नल एंट्री है दैट इज ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट और टू इनपुट IGST अकाउंट. ठीक है. और जो हम इसको शो करते हैं ट्रीटमेंट क्या है इसका? द ट्रीटमेंट इज it will be deducted from purchase in trading account and also be deducted from capital on liability side of the balance sheet as drawing. As a drawing हम drawing के लिए गुड्स को निकाल रहे हैं तो परचेज में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा एज अ ड्राइंग इन बैलेंस शीट. Then next is implied interest. Sometimes trial balance include loan account carrying a specific rate of interest. In such a case, it is necessary to calculate the interest even if nothing is mentioned in adjustment about the interest. अगर इंटरेस्ट के कभी कभी इंटरेस्ट लोन लिया जाता है, फर्म लोन ले लेती है तो लोन पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो इंटरेस्ट को हमें जो होता है कैलकुलेट करना होता है चाहे भले ही क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है. इफ नो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज शोन ऑन ट्रायल बैलेंस द फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग. अगर कुछ भी अमाउंट शो नहीं होती ट्रायल बैलेंस में तो जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो पूरी अमाउंट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाता है. और अगर कुछ अमाउंट शोन होती है तो उसे हम कंपेयर करते हैं और उसको फिर हम शो कर देते हैं एज आउटस्टैंडिंग. डिफरेंस को हम आउटस्टैंडिंग शो कर देते हैं. नेक्स्ट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी डिराइव्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स. कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जो रेवेन्यू नेचर के लेकिन उसका बेनिफिट डिराइव्ड होता है ओवर नंबर ऑफ ईयर. सच एक्सपेंडिचर आर टर्म्ड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम क्या कहते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसका बेनिफिट 3 to 7 ईयर्स में डिराइव होता है, इसलिए इसका जो पूरा अमाउंट होता है उसको हम डेबिट नहीं करते P&L अकाउंट से, बल्कि हम इसको स्प्रेड कर देते हैं इन द नंबर ऑफ ईयर जिसमें उसकी बेनिफिट लास्ट हो रही है. देन मैनेजर कमीशंस ऑन नेट प्रॉफिट. समटाइम्स इन एडिशन टू हिज रेगुलर सैलरी
द मैनेजर इज एंटाइटल टू अ कमीशन और नेट प्रॉफिट. कभी कभी मैनेजर को एडिशन ऑफ सैलरी कुछ कमीशन भी मिलता है. दैट कमीशन इज नोन एज मैनेजर्स कमीशन और दिस इज डन टू इंड्यूस हिम टू टेक मोर इंटरेस्ट इन द बिजनेस. इसलिए करा जाता है ताकि वो मोटिवेट होकर के बिजनेस में इंटरेस्ट ले सके. सिंस द कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, इट इज ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री इज पास फॉर इट. इसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मानते हैं और इसके लिए फॉलोइंग एंट्री पास होती है. दैट इज कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन account. Now see, treatment in final account. On one hand, it will be recorded on the debit side of P&L account because it is a business expense, and on the other hand shown on liability side of the बैलेंस शीट एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, इसको हम जो है कमीशन जो होता है मैनेजर्स कमीशन को उसको डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट शो करते हैं नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करके और फिर उसको लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह शो कर देते हैं. द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कमीशन, देयर आर टू मेथड्स, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 और ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन होगा बेटा तो फॉर्मूला हो जाएगा मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. और बिफोर चार्जिंग है अगर तो फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100. इज इट क्लियर? तो ये कमीशन का पॉइंट है. क्वेश्चन में जब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. From the following balances, prepare final account of Mr. Bal Gopal. Life insurance premium, ये LIC है. LIC इज ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस होता है. स्टॉक दैट इज ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. रिटर्न इनवर्ड दैट इज सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस होगा इन द ट्रेडिंग अकाउंट. फर्नीचर एसेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट, गैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन ट्रेडिंग अकाउंट, एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस हो जाएगा. कमीशन क्रेडिट बाय साइड ऑफ P&L अकाउंट, लाइटनिंग एक्सपेंस P&L अकाउंट में आ जाएगा. लोन फ्रॉम बैंक, लोन है ये हमारा, इट विल बी शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. देन वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा. देन सी बेटा कैपिटल बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सन्ड्री डेटर्स एसेट, कोल गैस एंड वाटर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड indirect expenses P&L account, sale minus sales return by side of trading account, discount debit P&L account, rent for premises sublet income हो गई है आपकी by side of P&L account. then trade expenses two side of P&L account, stationery डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे. कैश एसेट और इनपुट IGST दैट विल बी शोन. अगर इनपुट IGST ज़्यादा है और आउटपुट IGST कम है तो ये बैलेंस शीट उसमें आ जाएगा आपका. GST का ट्रीटमेंट सिर्फ बैलेंस शीट में होता है बेटा, इसका ट्रीटमेंट हम P&L अकाउंट में नहीं करते. अगर इनपुट GST ज़्यादा है आउटपुट GST कम है तो इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. आउटपुट GST ज़्यादा इनपुट GST कम है तो इट विल बी शोन, द डिफरेंस विल बी शोन ऑन द liability side of the balance sheet. Now see adjustment. Stock on 31st March 2018 was 10,000. Closing stock by side of P&L account and stationery unused at the end was 400. तो जो stationery की amount है इसमें से 2000 में से 400 माइनस हो जाएगा. Then rent of premises sublet received in advance 100 prepaid rent है. रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट में से माइनस हो जाएगा ऑन द बाई साइड ऑफ P&L अकाउंट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये ट्रीटमेंट होगा बेटा. डेटर्स पे 10% प्रोविजन क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद जो अमाउंट माइनस करने का जो अमाउंट आएगी उसमें से उसको डिस्काउंट देंगे एट द रेट 2%. स्टॉक ऑफ द वैल्यू 4000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस बाय फायर है. परचेज में से माइनस हो जाएगा 4000, ठीक है. और इस स्टॉक पर जो GST लगेगा IGST 12%, 4000 का 12%, ये आपका वो हो जाएगा. इसमें से आपका क्लेम जो है 3000 का एडमिट हो गया है तो 4000 पूरा का पूरा माइनस होगा परचेज में से. 3000 का क्लेम एडमिट हो गया है तो 4000 माइनस 3000, तो 4000 का आपका IGST हो जाएगा 12% फॉर 480 और 1000 आपका जो है क्लेम एडमिट नहीं हुआ है तो 1000 प्लस 480 1480 की अमाउंट शोन हो जाएगी ऑन P&L अकाउंट ऑन द डेबिट साइड लॉस बाय फायर. बैंक लोन 12% इंटरेस्ट पर है तो बैंक लोन ऑन द इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा बेटा 12%. तो इंटरेस्ट आपका जो है बैंक लोन की अमाउंट क्या थी, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ बैंक लोन बेटा. द अमाउंट ऑफ बैंक लोन इज कैरेज है आपका, ये स्टॉक हो गया, प्रेमिसेस सबलेट हो गया, लाइफ इंश्योरेंस, कैपिटल परचेजेस, रेंट, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, कमीशन, लाइटनिंग, लोन फ्रॉम बैंक. ये लोन फ्रॉम बैंक 5000 है बेटा. तो इस 5000 का ये इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करा. 5000 हमने लोन फ्रॉम बैंक था, 5 उसमें इंटरेस्ट जो दिया है 450 दिया है. तो और यहाँ पे बोला हुआ इंटरेस्ट आपको जो कैलकुलेट करने के लिए दैट इज़ 12%.
तो 5000 का 12% 600 हो गया, और पे चार्ज कितना कर रहा है 450 दे दिया है, तो इट मीन्स जो 150 है वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है. नाउ सी द सोल्यूशन बेटा. Trading account for the year ending on 31st March 2018, that is opening stock 7500, purchase 36,000, less return outward 500, less goods destroyed by fire 4000. ठीक है, तो परचेज आ गया 31,500, सेल्स आपका 60,000, लेस रिटर्न इनवर्ड 1,000, 59,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000. देन कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस एंड सैलरीज, ट्रेडिंग अकाउंट, कोल गैस एंड वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो आपने टोटल करा, बाई साइड का टोटल 69,000 था, उसमें से तुमने ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, दैट इज 21,100. इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में ले आएंगे. बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, बॉट डाउन 21,100. देन डिस्काउंट अलाउड 400, स्टेशनरी 2,000 की थी, अनयूज स्टेशनरी 400 था, माइनस होकर 1,600 आ गया. इंटरेस्ट इज 450 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 150, दैट इज 600. देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपने डेटर्स पे कैलकुलेट करा 1050, और फिर उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई उस पर डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया, दैट इज़ 189. लॉस बाय फायर 4480, ये 480 इसका इंटरेस्ट है जो मैंने आपको बताया था. लॉस बाय फायर 4,000 था, 12% इस पर आपको 12,000 उसका 12% GST कैलकुलेट कर लिया, तो दैट इज़ 480, तो 4,480 का लॉस हुआ. उसमें से इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 3,000 माइनस हो गया, तो 1,480 के अमाउंट PNL अकाउंट में शो हो गई. एडवर्टीजमेंट 200, ट्रेड एक्सपेंसेस 8,650, कैरेज आउटवर्ड 100, लाइटनिंग 250. बाई साइड में जो शो हुआ बेटा, बाई साइड में आपका रेंट आ गया 500, और उसमें से रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 100 प्लस माइनस हो गया, तो 400 का रेंट है. कमीशन रिसीव 600, तो बाई साइड का जो टोटल आया दैट इज 22,100, उसमें से टू साइड का माइनस कर दिया, और डिफरेंस आ गया नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 7581. ठीक है, नाउ सी द बैलेंस शीट बेटा. बैलेंस शीट एज एट 31st March 2018, कैपिटल 40,000, इसमें हमने नेट प्रॉफिट 7581 प्लस कर दिया, और जो LIC ड्राइंग थी 500 माइनस कर दिया, तो 47,081 कैपिटल आ गई. करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 4850, बैंक लोन 5,000, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 100, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 150. ठीक है, तो 57,181 बैलेंस शीट का टोटल आ गया लाइबिलिटी साइड का. देन फिक्स एसेट्स में फर्नीचर 4600, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 12,500, ये डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस से नोट डाउन कर दिया है. क्लोजिंग स्टॉक 10,000, इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम एडमिटेड हुआ था दैट इज 3,000, अनयूज स्टेशनरी 400, इनपुट्स IGST 5,000 आपका IGST था, माइनस आपका जो 480 का उस पर लगा क्लेम पे लगा है, तो माइनस करके 4520. डेटर्स 10,500, इसमें से प्रोविजन 1050 माइनस हो गया, और उसमें से फिर आपका डिस्काउंट ऑन डेटर्स 189 भी माइनस हुआ, तो 92861. कैश इन हैंड 2,900, टोटल आ गया 57,181. नाउ सी ये वर्किंग नोट जो आपको बताए थे. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक मैंने आपको बता दिया था 500 इंटू 12/100, दैट इज 600. इंटरेस्ट चार्ज 450 है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया 150, 600 माइनस 450. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 500 इंटू 12/100, 600. इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 450, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना आ गया 150. ठीक है, प्रोविजन का आपके आप ट्रीटमेंट कर लिया. सन्ड्री डेटर्स का 10% कैलकुलेट हो गया, तो दैट इज़ 1050, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई उसका आपने जो है वो कैलकुलेट कर दिया, तो वो आपका डिस्काउंट ऑन डेटर्स आ गया. ठीक है, दैट इज तुम्हारे सन्ड्री डेटर्स में से माइनस कर दिए प्रोविजन, और उसका जो है 2100 उसमें 189 का डिस्काउंट आ गया. सन्ड्री डेटर्स में से इसका ट्रीटमेंट माइनस हो गया. ठीक है, और एडजस्टमेंट एंट्रीज आ गई इसकी. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर के लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट. ठीक है, now see the next question, that is question number 10B. From the following particular taken out from the books of Subhash General Store, prepare trading and profit and loss account for the year ended on 31st March 2017 and balance sheet as at the date. Balance sheet is given. ठीक है, ये बैलेंस शीट है आपकी पूरी, और इसके अलावा द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है. क्लोजिंग स्टॉक 55,000, बैलेंस शीट का मतलब बैलेंस शीट बनानी है आपको, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट वो ट्रायल बैलेंस गिवन है. प्लांट एंड मशीनरी 1/4/2016 की 80,000. देन प्लांट एंड मशीनरी 1/7/2016 को परचेज करा 20,000, तो दोनों पे डैप होगा. एक पे तुम्हारा फुल ईयर का लगेगा, दूसरे पे आपका 9 मंथ्स का लगेगा फ्रॉम जुलाई टू मार्च. देन सन्ड्री डेटर्स 1,20,000, क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी, फर्नीचर एसेट, मोटर कार एसेट, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट बाई साइड, सेल्स रिटर्न उसमें से माइनस हो जाएगा. सैलरीज ओपनिंग PNL अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, मोटर कार एक्सपेंस PNL अकाउंट, स्टेशनरी PNL अकाउंट. देन इधर आपकी जो आइटम्स आ गए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1/1/2017 टू 31/12, तो 1/1/2017 से 31
3/3/2017 तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, और बाकी 1/4/2017 से 31/12 का 9 मंथ्स का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो एडवांस इंश्योरेंस है, एडवांस प्रीमियम है. कैश एट बैंक एसेट, वेजेस, एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड, P&L अकाउंट, फ्यूल एंड पावर, ट्रेडिंग अकाउंट, मनोज कैपिटल उसमें से ड्राइंग माइनस हो जाएगी, ब्रोकरेज आपका P&L अकाउंट, डोनेशन आपका P&L अकाउंट में आ जाएगा. द क्लोजिंग स्टॉक इसमें दे रखा है 55,000 का है, तो इट विल बाय साइड ऑफ P&L अकाउंट. वो ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक वैल्यूड एट 10,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, इसमें 6800 का क्लेम एडमिट हो गया है, तो रिमेनिंग पे आपका जो है रिमेनिंग आपका P&L अकाउंट में शो हो जाएगा 10,000 माइनस 6800, और 6800 बैलेंस शीट में एसेट साइड में. स्टेशनरी फॉर ₹150 वॉज कंज्यूम्ड बाय प्रोप्राइटर, स्टेशनरी में से अमाउंट माइनस हो जाएगी, दैट इज ड्राइंग, और फिर कैपिटल में से भी डिलीट होगा, माइनस हो जाएगा ये ड्राइंग की अमाउंट. गुड्स कॉस्टिंग ₹1200 वर गिवन अवे एज चैरिटी, P&L अकाउंट में भी शो होगा, और परचेज में से माइनस हो जाएगा 1200. न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग ₹1500 इज इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजमेंट में 1500 की अमाउंट प्लस हो जाएगी. रेंट टू इज टू बी अलोकेट 2/3 टू द फैक्ट्री एंड 1/3 टू द ऑफिस. तो जो रेंट की अमाउंट है उसका 2/3 आप निकाल के फैक्ट्री उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट, और 1/3 आप P&L अकाउंट में शो करेगा. डेप्रिशिएशन दोनों पे चार्ज हो जाएगा, मशीनरी पर और मोटर कार पे. नाउ सीधा सोल्यूशन बेटा, सीधा सोल्यूशन. Financial statement, Subhash General Store trading account for the year ended on 31st March 2017. Opening stock 60,000, purchase 160, less goods destroyed by fire 10,000, less charity 1,200, 1,48,800. Carriage inward 10,200, rent 2/3 यहाँ पर आ गया 8,000, wages 20,400, fuel and power 15,700. इधर आ गया सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 2,65,000, क्लोजिंग स्टॉक 55,000. डिफरेंस आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, दैट इज 56,900. ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका P&L अकाउंट में आ जाएगा बेटा, इट विल बी शोन इन P&L अकाउंट. ठीक है, और P&L अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका, देखिए 56,900. देन चैरिटी 1,200, स्टेशनरी 500, लेस ड्राइंग आ गई 150, एडवर्टीजमेंट 4,800 का है, लेस साइन बोर्ड के लिए जो आपका 1,500 आ गया, 3,300 का एडवर्टीजमेंट आएगा. डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 9,500 बेटा, ये एक पर तो तुम्हारा उस पर लगा है तुम्हारा 10%, और दूसरी मशीनरी जो जुलाई में आई है उसमें 9 मंथ्स का चार्ज हुआ. मोटर कार 14,000. देन सैलरीज 36,000, लॉस बाय फायर 10,000, और लेस इंश्योरेंस क्लेम 6,800, तो आपका 3,200 का आ गया. रेंट 1/3 यहाँ पर आ गया. इंश्योरेंस लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 900, 300 इधर आ गया. ब्रोकरेज मोटर कार एक्सपेंसेस 6,000, ब्रोकरेज 700, कैरेज आउटवर्ड 2,000 एंड डोनेशन 5,100. और बाई साइड में आपका कुछ नहीं है, तो नेट लॉस आया है आपको, डेबिट साइड का टोटल हुआ, क्रेडिट साइड का, तो नेट लॉस दैट इज 28,750. नाउ सी बैलेंस शीट बेटा. बैलेंस शीट में कैपिटल 3,50,000, इसमें से नेट लॉस माइनस हो गया, ड्राइंग माइनस हो गई 12,000 प्लस 150, तो आपका जो है ये आगे 3,09,100. करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 32,000, टोटल आ गया 3,41,100. देन ऑन द एसेट साइड बेटा, फिक्स एसेट्स में फर्नीचर 5,000, मशीनरी 8,000, एडिशन 20,000 की, और उसमें से डेप माइनस हो गया 9,500 का, तो 90,500. मोटर कार 70,000, लेस डेप्रिशिएशन 14,000, 56,000. करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक आ गया 55,000, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम हो गया एडमिटेड 6,800, प्रीपेड इंश्योरेंस 900, डेटर्स 1,20,000, इस पर कोई प्रोविजन नहीं था. साइन बोर्ड जो 1,500 का है वो न्यू साइन बोर्ड था, वहाँ से माइनस हुआ, यहाँ पर आ गया एसेट साइड में. कैश एट बैंक 5,400. ठीक है, सी वर्किंग नोट. कैलकुलेशन डेप्रिशिएशन 80,000 का 10% निकाला, और 20,000 का 10% इंटू 9/12 9,500 का डेप आएगा. मोटर कार में 70,000 इंटू 20/100 14,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 इंटू 10/100 प्लस 20,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12 9,500. ठीक है, नाउ कैलकुलेशन प्रीपेड इंश्योरेंस 12,000 इंटू 9/12 900, और उसके बाद जो है ये जो अमाउंट आपकी कैलकुलेट हो रही है, तो ये आपकी इंश्योरेंस का प्रीपेड इंश्योरेंस जो है माइनस हो जाएगा, और वो एसेट साइड और बैलेंस शीट हो रहा है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड बेटा. लास्ट लेक्चर इज लेफ्ट, इसके बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. वॉट एवर इज योर T4 सिलेबस, इट वॉज अपलोडेड इन योर ग्रुप. सी दैट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, कंप्लीट ऑल द वर्क इन योर कॉपी. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.